Good morning, students. How are you, beta? I hope you all are happy and healthy at home and doing your work properly. Students, today we will start chapter 2 from our book Hornbill. Name of chapter 2 is We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together. Here, we refers to the family members of the narrator, and this is a statement spoken by one of the main character, the son of the narrator, Jonathan. Written by Gordon Cook and Alan East. Gordon Cook is actually the narrator of this chapter, and Alan East may have helped the narrator. This chapter is a travelogue. ट्रेवलॉग मीन्स क्या है? यात्रा वृत्तांत, जिसमें किसी यात्रा का वर्णन किया गया हो, वो लेख। तो यहाँ पर एक वोयाज का वर्णन किया है नरेटर ने। लेट्स डिस्कस द मेन कैरेक्टर्स ऑफ दिस चैप्टर। नंबर 1 इज नरेटर. ही इज 37 years old. He is a man of great courage and commitment. He proved to be the best father. Next one is Mary. She is the wife of the narrator. She always stood by her husband in every condition, in every situation. Next one is Susan. She is 7 years old, daughter of the narrator. Shortly she is known as Shuri. Next one is Jonathan. He is 6 years old, son of the narrator. In short, he is known as John. Next one is Larry Vigil. He is an American crewman who helped a lot in the bad condition. Next one is Herb Sizzler. He is a Swiss crewman. He also helped the family in the bad weather to rescue the ship. There are made 6 characters, and there is one name also. Name is Wave Walker. Wave Walker. It is a boat. It was 23 meter long and 30-ton wooden hulled boat. Wooden hulled boat means क्या है? Made of wood planks. Here, in this description, the narrator is giving first person account, first person narration of the story. First person narration means क्या है? The narrator is using I, we, first person pronouns in the story. Let's take an introduction of the story. Here, the narrator. Who is the narrator? Gordon Cook. Decide to duplicate the voyage which was made 200 years ago by Captain James Cook. After deciding it, he started preparation for the voyage with the help of his wife Mary. Both husband and wife prepared for the journey. They made the ship Wave Walker and they tested this ship in the roughest weathers they can. And now their journey starts in July 1976 from Plymouth in England. They started from Plymouth in England, and now they have to reach Australia. They had to take a stay at South Africa, and from there they took Larry Vigil and Herb Sizzler as their helpers, because they knew the next part of the journey will be having the roughest sea of the world. The Indian Ocean, Southern Indian Ocean is known as the roughest sea in the world, and now they have to proceed through that sea. That's why they took Larry Vigil and Herb Sizzler as the helpers. But
when they faced the bad weather, the situation of everyone was very pathetic. They faced difficult situations, and at last they reached their destination, Australia. Students, let's discuss the chapter line by स्टूडेंट्स, अब तक हमने जाना था कि नरेटर किसी तरह वापस पहुंच गया था। कहाँ पर? स्टीयरिंग व्हील के पास। वह स्टीयरिंग व्हील पकड़े हुए है, शिप में पानी पानी है। तभी जो डेक का पार्ट है वहाँ से एक दरवाज़ा है वो खुलता है और उसे मैरी नज़र आती है। मैरी बताती है कि हम डूब रहे हैं और वो मैरी को कहता है कि तुम स्टीयरिंग व्हील पकड़ो। मैरी स्टीयरिंग व्हील पकड़ती है और वह आता है, देखता है कि लैरी और हर दोनों बहुत ही मेहनत से बहुत अधिक पानी को बाहर निकाल रहे थे, जुटे हुए थे, पागलों की तरह लगे हुए थे। अब वह रेंगता हुआ तैरता हुआ किसी तरह बच्चों के रूम में पहुंचता है और वहां जाकर बच्चों का हालचाल जानता है। बच्चे दोनों ऊपरी बर्थ के ऊपर थे, ऊपरी जो बंक था उसके ऊपर थे और उन्होंने कहा कि हम ठीक है। जो सुजैन थी, उसके आंखों के पास सर में सूजन थी, उसने कहा कि दर्द हो रहा है, परंतु नरेटर कहता है कि मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि किसी भी सूजन की तरफ मैं ध्यान दे पाता, और वह वहाँ से आ जाता है। अब उसने देखा कि पानी में जो सामान था शिप में, चार्ट थे, मैप थे, क्रोकरी थी, टीन्स थे और बच्चों के टॉयज थे, वो सब कुछ तैर रहे थे। ये डेब्रिस बन गया था। और अब क्या होता है, नरेटर फटाफट पेचकश ढूंढता है, हैमर ढूंढता है और कनवास ढूंढता है, और जो स्टारबोर्ड साइड जो कि अंदर की तरफ धंस गई थी, लगभग पूरी टूट गई थी, उसको रिपेयर करता है। उसे पता था यदि इसको रिपेयर नहीं किया गया तो निश्चित ही डूब जाएंगे। नरेटर उस पर कनवास लगाता है, पानी रोकने का इंतजाम करता है, और अब जो लहरें आ रही थी वो बाहर से बाहर ही जाने लगी थी। अब पानी निकालते निकालते अगली मुसीबत आ गई थी। क्या? जिन पंप से लैरी और हर पानी निकाल रहे थे वो चोक हो गई थी। जो डेब्रिस थी, जो कचरा पानी में तैर रहा था, वो उन पंप्स में उलझ गया था और वो उन्होंने काम करना बंद कर दिया था। अब देखा गया कि जो इलेक्ट्रिक पंप था उसका यूज करे तो वो भी पाया कि वो उसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से उसने काम छोड़ दिया था। अब नरेटर को याद आया कि डेक के ऊपर 2 पंप और हैं, बट वो भी टूट गए थे बादबानों के साथ, जिब के साथ, और जो एंकर था उन सब के साथ वो पंप भी टूट गई थी। अब नरेटर को याद आया कि जो चार्ट रूम है उसमें फर्श के नीचे एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक पंप रखा हुआ था, और सौभाग्य की बात थी कि वो पंप काम करता हुआ उसे मिलता है। अब उस पंप की सहायता से पानी निकालना शुरू किया जाता है और पानी को कंटिन्यू बारी बारी तीनों काम करके निकालते हैं। अब सुजैन ने बताया कि उसके हाथ में दर्द है, हाथ पे भी चोट लगी थी, तो सुजैन को कहा गया कि तुमने ये सब क्यों नहीं पहले बताया? तो उसने कहा कि इतनी मेहनत से तुम हमें बचाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए ये सब नहीं बताया गया। किसी तरह लहर का सामना करने के 15 घंटे बाद तक भी बचे हुए थे और मेहनत कर रहे थे बचने की। और अब कैलकुलेशन करता है नरेटर कि ऑस्ट्रेलिया तो नहीं पहुंच सकते क्योंकि जहाज़ की जो कंडीशन थी वो सही नहीं थी, इसलिए वह कैलकुलेशन करता है कि यहाँ पर कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर ईस्ट में क्या थे, एक आइलैंड था, आइल एम्स्टर्डम, जो कि फ्रांस का साइंटिफिक केंद्र था, और वहाँ तक पहुँचना था। उसने कैलकुलेशन की कि कितना टाइम लगेगा। अब बड़ी वेव की वजह से जो एक्स्ट्रा इंजन था, जो हेल्पिंग इंजन था, उसने भी काम करना बंद कर दिया था। अब स्टार्ट करते हैं आगे। ऑन जनवरी 4 आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग, 4 जनवरी को लगातार 36 घंटे पंपिंग करने के बाद वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, कि अब क्या कंडीशन थी कि आखिरी कुछ सेंटीमीटर पानी ही बोट के अंदर बचा था। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। अब हमें कीप पेस मीन्स क्या है? कीप कंटिन्यू, कीप द सेम स्पीड। अब हमें उसी स्पीड में पानी को बाहर निकालना था, जो पानी अंदर आ रहा था उसी को सेम स्पीड से बाहर निकालना था। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट। मेन मास्ट के ऊपर अभी कोई सेल नहीं लगा सकते थे। प्रेशर ऑन द रिगिंग, रिगिंग मीन्स क्या है? रोप्स दैट सपोर्ट द मास्ट, मास्ट को सपोर्ट करने वाली जो रस्सियां थी उनके ऊपर क्या था? प्रेशर था, दबाव था। वुड सिंपली पुट द डैमेज
सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट। यदि वो बांधा जाए तो जो डैमेज्ड सेक्शन था, जो टूटा फूटा ब्रोकन पार्ट था शिप का, वो अलग हो सकता था। सो वी होइस्टेड द स्टॉर्म जिप, इसलिए केवल जो स्टॉर्म जिप थी उसी को लगा करके रखा, बांध करके रखा, उसी के सहारे चलते रहे। एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द 2 आइलैंड्स वर, और उस तरफ, उस दिशा में चलते रहे जहां पर मैंने सोचा था कि 2 द्वीप थे। मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स, मैरी को कुछ पका हुआ मांस मिल गया था और कुछ बिस्किट मिले थे। एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days, और लगभग 2 दिनों बाद हमने पहली बार खाना खाया था। बट आवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड, रेस्पाइट मीन्स क्या, रिलैक्स, आराम की जो स्थिति थी वो बहुत ही कम समय के लिए थी। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, 4 बजे ही बड़े बड़े काले बादल हमारे बिल्कुल पीछे बनने स्टार्ट हो गए थे। विद इन द हार द विंड वॉज बैक टू 40 knots, और 1 घंटे के अंदर अंदर ही जो विंड थी, हवा थी, वापिस 40 सी मील्स, नोट्स मीन्स क्या, सी मील्स की स्पीड से फिर से चलनी स्टार्ट हो गई थी। एंड द सीज वर गेटिंग हायर, और जो सीज मीन्स क्या है, पर वेव्स, जो लहरें थी वो अब ऊंची उठने लगी थी। द वेदर कंटिन्यूड टू डिटेरियोरेट, डिटेरियोरेट मीन्स क्या है, बदतर होता गया, बिकम वर्स, कि जो मौसम था अब लगातार बदतर स्थिति में होता जा रहा था थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात्रि से। एंड बाय डॉन ऑफ जनवरी 5, और जनवरी 5 की सुबह तक आवर सिचुएशन वाज अगेन डेस्परेट, डेस्परेट मीन्स क्या, होपलेस, हमारी स्थिति दोबारा से होपलेस थी, उदासी की थी। व्हेन आई वेंट इन टू कम्फर्ट द चिल्ड्रन, जॉन आस्क्ड, जब मैं अंदर गया बच्चों को रिलैक्स कराने, उनको कंफर्ट फील कराने, तो जॉन ने मुझसे पूछा, जॉन कौन है, जोनाथन, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, डैडी क्या हम मरने वाले हैं, क्या हम मर जाएंगे। आई ट्राई टू एश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट, मैंने पूरी प्रयास की उसको विश्वास दिलाने की कि हम मैनेज कर लेंगे, बच जाएंगे। बट डैडी, ही वेंट ऑन, परंतु डैडी वह कहता रहा, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, हम मरने से नहीं डरे हुए हैं यदि हम सभी एक साथ हैं तो। कौन कौन एक साथ है, यू एंड मम्मी, शू एंड आई, आप और मम्मी, शू और मैं। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रिस्पॉन्ड, अब मेरे पास शब्द नहीं थे जिससे मैं रिस्पॉन्ड करता, रिप्लाई करता, उत्तर देता। बट आई फेल्ट द चिल्ड्रंस कैबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग आई हैड, परंतु बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन, परंतु जब मैं बच्चों के कैबिन से बाहर आया तो मैंने दृढ़ निश्चय किया, मैंने डिसाइड किया कि मैं अब सी में लड़ूंगा, मैं पूरी मेहनत करूंगा, कुछ भी हो बच्चों को बचाने की जो भी मेरे पास है सब पूरी कोशिश करूंगा। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, कि जो कमजोर पड़ गई राइट साइड थी शिप की, उसको सुरक्षित करने के लिए आई डिसाइडेड टू हीव टू, मैंने डिसाइड किया कि उसको टोसअप मीन्स क्या, उछालने का, उसको टोस करने का मैंने डिसाइड किया। विद द अनडैमेज्ड पोर्ट हल फेसिंग द ओनकमिंग वेव्स, कि जो अनडैमेज्ड, जो सुरक्षित पार्ट था हल का, हल मीन्स क्या है, कवरिंग ऑफ द शिप, जो शिप को कवर करने की चीज़ थी वो जो सुरक्षित थी उसको सुरक्षित रखने की कोशिश की गई। फेसिंग द ओनकमिंग वेव्स, जो कि अभी आने वाली लहरें थी उनसे सुरक्षित बचाने की कोशिश की गई, जो बचाव पार्ट था उसको। यूजिंग एन इम्प्रोवाइज्ड सी एंकर, इम्प्रोवाइज्ड मीन्स क्या है, मेड ए सडन वर्केबल अरेंजमेंट, एक काम चलाऊ प्रबंध किया गया उसी टाइम। सी एंकर, एंकर मैंने बताया था लाइक ए ब्रेक कह सकते हैं, कि शिप को रोकने के लिए जो मेटल होता है भारी भरकम, वो उसमें कुछ सुधार गया। ऑफ हैवी नाइलॉन रोप, एक भारी भरकम जो नाइलॉन मटेरियल की बनी हुई रस्सी थी उसके सहारे। एंड 22 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन, और इसके साथ में क्या डाल दिए गए, 22 लीटर के प्लास्टिक के बैरल थे पैराफिन के। पैराफिन मीन्स क्या है, जो ऑयल है वो। That evening Mary and I sat together holding hands
as the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks. उस सायकाल मैरी और मैं एक साथ बैठे हुए थे, अपने हाथों को पकड़ करके। जब जो जहाज की मोशन थी, गति थी, स्पीड थी, वो ब्रोट मोर एंड मोर वाटर, उसमें क्या आ रहा था, पानी और अधिक अधिक अंदर आता जा रहा था। थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स, प्लैंक्स मीन्स क्या होता है, लॉग वुड, बड़े बड़े लकड़ी के जो फट्टे हैं वो, उनसे पानी अंदर आता जा रहा था जो कि टूटे हुए थे। वी बोथ फेल्ट द एंड वाज वेरी नियर, हम दोनों ने महसूस किया कि हमारा अंत बहुत ही नजदीक था। बट वेवाकर रोड आउट द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6, परंतु वेवाकर आगे बढ़ चली थी, स्टॉर्म से बाहर आ गई थी जनवरी 6 की सुबह तक। विद द विंड ईजिंग, ईजिंग मीन्स क्या है, बड़ी कंफर्ट कराने वाली थी, बिकमिंग लेस फ्यूरियस, हवा थी अब थोड़ी सही चल रही थी, तेज स्पीड से नहीं थी। आई ट्राइड टू गेट ए रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट, मैंने कोशिश की, सेक्सटेंट में होता है एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एंगल्स एंड डिस्टेंसेस, एक इंस्ट्रूमेंट जो कि एंगल्स और डिस्टेंस को मेजर करने के लिए होता है, उसको रीड करने की कोशिश की। बैक इन द चार्ट रूम, वापस चार्ट रूम में गया। आई वर्कड ऑन विंड स्पीड्स, और मैंने देखा, काम किया, पता लगाने की कोशिश की विंड की स्पीड की, मौसम के बारे में जानने की। आई वर्कड विंड स्पीड, चेंजेज ऑफ कोर्स, हवा की गति के बारे में जाना, जो चेंजेज ऑफ कोर्स, कोर्स मीन्स क्या, डायरेक्शन, कि उसकी डायरेक्शन के बदलाव के बारे में जाना। ड्रिफ्ट एंड करंट एंड इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट, ड्रिफ्ट मीन्स क्या है, करंट, जो बहाव था, फ्लो, जो बहाव था, प्रवाह था। इन एन एफर्ट, एक प्रयास में, टू कैलकुलेट आवर पोजीशन, ताकि जो हमारी पोजीशन थी उसको मैं कैलकुलेट कर सकूँ, कहाँ पर थे, उस आइलैंड से हम कितनी दूर थे, और इस स्पीड से कब तक डायरेक्शन चेंज करके हम पहुँच सकते थे। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वॉज दैट वी वर समवेयर इन 1,50,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशियन लुकिंग फॉर ए 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड। और अच्छी बात जो कि मैंने डिटरमाइन की, मैंने निश्चित की, अंदाज़ा लगाया, पता लगाया, वो ये थी कि हम कहीं पर थे 1,50,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशियन, समुद्र में 1,50,000 किलोमीटर्स के ओशियन में, और हम क्या ढूंढ रहे थे, एक 65 किलोमीटर के आइलैंड को ढूंढ रहे थे। मीन्स इतने बड़े ओशियन में एक छोटे से आइलैंड की खोज हम कर रहे थे। वाइल आई वॉज थिंकिंग शू मूविंग पेनफुली, और जब मैं ये सब सोच रहा था तो शू है वो बड़े तकलीफ के साथ आगे बढ़ रही थी। जॉइन मी, वो मेरे साथ आई। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी स्वॉलन, उसके सर का जो लेफ्ट हिस्सा था बहुत अधिक सूज गया था। एंड हर ब्लैकेंड आईज नैरोड टू स्लिट्स, और उसकी जो काली पड़ गई आंखें थी, जब चोट लगती है तो स्किन पर निशान हो जाते हैं, उसी तरह जो काली पड़ गई आंखें थी वो अब क्या हुई थी, नैरोड टू स्लिट्स, बहुत ही धीमी धीमी। अब जो शू की आंखें थी वो कैसी दिखाई दे रही थी, लॉन्ग नैरो कट्स की तरह से दिखाई दे रही थी। स्लिट्स मीन्स क्या था, लॉन्ग नैरो कट्स, बहुत ही पतली हो गई थी। स्वेलिंग की वजह से आंखें बिल्कुल लगभग बंद सी हो गई है, सिर्फ स्लिट्स नजर आ रही है जैसे कि कोई कट हो। शी गेव मी ए कार्ड शी हैड मेड, उसने मुझे एक कार्ड दिया जो उसने बनाया था। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स, कैरिकेचर्स मीन्स क्या था, सेटिरिकल पोर्ट्रेट और पिक्चर्स, व्यंग्यात्मक पिक्चर्स उसने बनाई थी उस कार्ड में। ऑफ मैरी एंड मी विद वर्ड्स, मैरी की और मेरी शब्दों के साथ। क्या शब्द लिखे थे, हेयर आर सम फनी पीपल, कि यहाँ पर कुछ फनी लोग हैं। डिड दे मेक यू लाफ, क्या वो तुम्हें हंसाएंगे। आई लाफ्ड ए लॉट एज वेल, मैं भी खूब हंसा था। इनसाइड वॉज ए मैसेज, क्योंकि इसके अंदर एक मैसेज था। ओ हाउ आई लव यू बोथ, कि मैं तुम दोनों को कितना प्यार करती हूँ। सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू, इसलिए ये कार्ड मैंने बनाया है तुम्हें धन्यवाद कहने के लिए। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और आओ हम उम्मीद करें अच्छे की। समहाउ वी हैड टू मेक इट, किसी भी तरह से हमें इस परिस्थितियों को पार करना है, अपने आप को बचाना है, अच्छे की कामना करनी है और अच्छा ही प्राप्त करना है। आई चेक्ड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशंस,
मैंने चेक किया, बार बार चेक किया, जो मेरी कैलकुलेशन थी, गणना थी उसको। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास, हमारा जो मेन कंपास था वो गुम हो गया था। कंपास क्या होता है? डायरेक्शन शोइंग इंस्ट्रूमेंट होता है। एंड आई वॉज यूजिंग ए स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन, और मैं एक स्पेयर, एक एक्स्ट्रा जो कंपास था उसका यूज कर रहा था, जो कि विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशंस, जो कि मैग्नेटिक वेरिएशंस के लिए करेक्ट नहीं किया गया था, जिसको सेट नहीं किया गया था। आई मेड एन अलाउंस, अलाउंस मीन्स क्या? रिलैक्सेशन, छूट। मैंने कुछ कंसेशन की, मैंने कुछ छूट की फॉर दिस, इसके लिए। एंड अनदर एस्टिमेट, और दूसरा एस्टिमेट लगाया, अंदाजा लगाया ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करंट्स, की जो प्रभाव था वेस्ट साइड के करंट का, प्रवाह का, दबाव का, उसका। विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशियन, जो कि चलता रहता है इंडियन ओशियन के इस हिस्से में। About 2 p.m. I went on deck and asked Larry to steer a course of 85 degrees. और लगभग 2 बजे के आसपास मैं गया डेक पर और मैंने लैरी को कहा टू स्टीयर ए कोर्स, कि वो स्टीयर करे। कोर्स मीन्स क्या था? डायरेक्शन की दिशा में, जो कि 185 डिग्री पर है। इफ वी वर लकी, आई टोल्ड हिम विद ए कन्विक्शन, कन्विक्शन मीन्स क्या? डिटर्मिनेशन। यदि हम सौभाग्यशाली हैं तो मैंने एक पूरे विश्वास से, एक दृढ़ निश्चय से उसे बताया। आई डिड नॉट फील, मुझे नहीं महसूस हुआ था, ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM, कि वह उम्मीद करता है कि उनको आइलैंड मिल जाएगा लगभग 5 बजे के आसपास। देन विद ए हैवी हार्ट, फिर भारी दिल से, आई वेंट ब्लो, मैं नीचे चला गया। क्लाइम्ड ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ, डोज ऑफ मीन्स क्या? फेल्ट स्लीपी। बंक मीन्स क्या? स्लीपिंग बाथ, सोने की जो जगह थी वहां पर चढ़ गया। और सरप्राइज की बात यह थी कि मुझे नींद आई। व्हेन आई वोक इट वाज 6 PM, और जब मैं जगा तो 6 बज गए थे। एंड ग्रोइंग डार्क, और अंधेरा हो रहा था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, मैं जानता था कि हमने आइलैंड को मिस कर दिया होगा पक्का। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट, और जो सेल, जो स्पीड, जो उसके साथ हम आगे बढ़ रहे थे, वो हमने पीछे छोड़ दिया होगा आइलैंड को। वी कुड नॉट होप टू बीट बैक इन टू द वेस्टली विंड्स, और हम उम्मीद नहीं कर सकते थे कि हम वापस बीट करते, हम वापस जाते, साहस करते वापस जाने का, इस जो वेस्टर्ली विंड थी, पश्चिमी हवाएं जो चल रही थी उनमें। एट दैट मोमेंट आई टाउसलेट हैड ए टाउसलेट हैड अपीयर्ड माई बाथ। उसी क्षण एक टाउसलेट मीन्स क्या है? डिसऑर्डर, अस्वस्थ जो हेड है वो मेरी बंक के ऊपर आया। कैन आई हैव ए हग, और उसने मुझे क्या कहा कि मैं क्या आपको हग कर सकता हूँ, एम्ब्रेस कर सकता हूँ। जोनाथन आस्क्ड, कौन था ये? जोनाथन। शी वॉज राइट बिहाइंड हिम, शी भी बिल्कुल उसके पीछे ही थी। वाई एम आई गेटिंग ए हग नाउ, अब मुझे क्यों हग किया जा रहा था? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड, क्योंकि आप संसार के सबसे अच्छे डैडी हो और सबसे अच्छे कैप्टन हो, मेरे बेटे ने उत्तर दिया। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड, आज नहीं जॉन, मुझे डर है कि आज मैं अच्छा इंसान नहीं हूं। वाई यू मस्ट बी, सेड शू इन ए मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, शू ने बड़ी डिटर्मिनेशन से कहा कि तुम्हें होना चाहिए, तुम हो, निश्चित हो। यू फाउंड द आइलैंड, तुमने आइलैंड को ढूंढ लिया है। व्हाट, व्हाट के पीछे क्या लगा है? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मीन्स सरप्राइज है। आई शाउटेड, मैं चिल्ला, क्या? बट सॉरी, इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, ये बिल्कुल हमारे सामने है। दे कोर्स्ड, कोर्स मीन्स क्या है? सिंगिंग इन द ग्रुप, एक साथ वो बोले। एज बिग एज ए बैटल शिप, कितना बड़ा है? जैसे कि एक बैटल शिप होती है, एक लड़ाकू पोत होती है, उसके बराबर। आई रस्ड ऑन डेक एंड गेज, मैं दौड़ करके गया डेक के ऊपर और घूर करके देखा, बड़े ध्यानपूर्वक देखा। गेज मीन्स क्या? लुक्ड केयरफुली, विद रिलीफ, रिलैक्सेशन से। एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ आइल एम्स्टर्डम, स्टार्क मीन्स क्या है? कंप्लीट, पूरी,
जो आउटलाइन थी आइल एम्स्टर्डम की वो मुझे नजर आ रही थी। इट वॉज ओनली ए ब्लिक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक। यह केवल एक ब्लिक मीन्स के बेयर ट्रीलेस, यह एक निर्जन सा बिना किसी वृक्षों के एक पीस था, एक टुकड़ा था एक वोल्केनो का, वोल्केनिक रॉक का, जो कि किससे बनी थी? वोल्केनो से। विद लिटिल वेजिटेशन, जहाँ पर बहुत ही कम वेजिटेशन थी, वनस्पति थी। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, संसार का बहुत ही सबसे सुंदर आइलैंड ये था। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट। एंकर्ड मीन्स क्या है? वर्ब है यहाँ पर। एंकर्ड द शिप, जहाज का लंगर डाला मीन्स वहां पर जहाज को रोक दिया। ऑफ शोर, ऑफ शोर मीन्स क्या? एट द शोर, किनारे पर, समुद्र तट पर। फॉर द नाइट, रात्रि के लिए। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 इनहेबिटेंट्स, इनहेबिटेंट्स मीन्स क्या? रेजिडेंट्स, निवासी। अगली सुबह सभी जो 28 इनहेबिटेंट्स थे उस आइलैंड के, चीयर्ड एज दे हेल्प्ड अस अशोर। चीयर मीन्स क्या? वेलकम्ड, वो बड़े खुश हुए, उन्होंने हमारा स्वागत किया बड़े खुश तरीके से। हमारी दे हेल्प्ड अस अशोर, उन्होंने तट पर हमारी मदद की। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन, दोबारा से मैं जमीन पर था। माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी, मेरे विचार पूरे परिपूर्ण थे लैरी और हर्बी से। चेयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक, जो कि खुश रहे और ऑप्टिमिस्टिक रहे, आशावादी रहे, होपफुल रहे। अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस, डायरेस्ट स्ट्रेस मीन्स क्या है? मोस्ट हॉरिबल सिचुएशन में, टेंशन में भी दोनों क्या थे? बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक थे। कौन? लैरी और हर। तो मैं भी उनको देख करके खुश था। एंड ऑफ मैरी, और यदि मैरी की बात करें, हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रिशियल हार्स, जो कि व्हील के साथ में खड़ी रही इतने क्रिशियल हार्स में, इतने क्रिटिकल समय में व्हील को पकड़े रही। मोस्ट ऑफ ऑल, सबसे ज्यादा। आई थॉट ऑफ द 7-year-old गर्ल, मैंने उस 7 वर्षीय लड़की के बारे में सोचा। हु डिड नॉट वांट अस टू वरी, जो कि हमें चिंतित नहीं करना चाहती थी। अबाउट ए हेड इंजरी, जो कि उसकी सर की चोट थी। विच सब्सिक्वेंटली, सब्सिक्वेंटली मीन्स क्या? अल्टीमेटली, अंततः, आखिरकार। टुक 6 माइनर ऑपरेशन, जिसके 6 माइनर ऑपरेशन हुए, छोटे छोटे 6 ऑपरेशन हुए बाद में। टू रिमूव द रिकरिंग ब्लड क्लोट, कि जो ब्लड क्लोट्स, खून के थक्के दब गए थे, जम गए थे, खून के धब्बे जम गए थे सर में, उनको रिकर करने के लिए, इलाज करने के लिए, उनको बाहर निकालने के लिए। बिटवीन स्किन एंड स्कल, कहाँ पर थी? स्किन और स्कल के बीच में जो खून के थक्के जम गए थे उनको निकालने के लिए। एंड ए 6-year-old बॉय हु वाज नॉट अफ्रेड टू डाई, और एक 6 साल का लड़का जो कि मरने से नहीं डर रहा था। सो स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड chapter We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together. I hope it is clear to you. Thank you.